Welcome to Comp 452 Computer Architecture, and this is lecture 6B. In this lecture we will continue our study of control hazards, and as I mentioned towards the end of the previous lecture that we we are interested in reducing the delays of taken branches. If a branch is taken, we would like to reduce its delay as much as possible. Okay, so this is what we are going to discuss today. So let's see where the branch target uh, where the branch target is calculated and where the decision is made whether to take the branch or not to take the branch. So let's take a look at a figure, and this is the figure that I want to show you. Now if you look at this figure, this is pipeline architecture, this is pipeline data path, and if you look here, this is let's use a different color. Let's use the screen color. This is where branch target is calculated. Okay, and this is where the decision is made whether or not to take the branch. Okay, if you remember, this is zero flag or zero signal. So if this is 1, then branch if equal is taken, and if it is 1, then branch if not equal is not taken. Okay, this is zero flag. So now when our branch, if let's write those first few instructions of the sequence that we were talking about, and they were at address 40 we had branch if equal, and this is from the previous lecture, register 1, register 3, and then here we had 28. Actually it should have been 7, but I'm writing it the way it's written in your book. And then we had AND instruction, register 12, register 2, register 5. At 48 we had OR instruction, register 13, register 6, register 2. At 52 we had add instruction, register 14, register 2, and register 2. Okay, now let's see, when branch if equal reaches this stage, branch if equal, if branch if equal is in execution stage, then AND will be in decode stage and OR will be in the fetch stage. Alright, okay. So basically we have 2 more instructions in the pipeline, and by the time we get to the mem stage, this is the mem stage, and it is the mem stage from where we send back branch target and also this zero flag. So
which means that by the time branch instruction reaches this stage and will have reached this stage or will have reached this stage, and the add instruction would be here. Add would be here in the fetch stage. Now the question is there any possibility of moving branch target calculation? Branch target calculation, actually it involves both these things, and this decision. Can we somehow take it back to this instruction decode stage, this stage, instruction decode stage? Can we do that? If we could do that, then we will have to only flush one instruction, the one in the fetch stage. Okay, so if we can do that, then we will have saved at least one stall cycle. It turns out that moving this branch target calculation to ID stage is very easy, very simple. All you have to do is to bring that, I'm sorry, this is your PC+4, this is PC+4 going into the adder, and then this output of the sign extender, it is routed here, and this is shift left 2 and shift left 2, and then we add these two values, and this is where we can get the branch target. Now this is doable, there's no problem with that. The hardest part is doing this decision making. This decision making is the hardest part. Okay, now the question is that what should we do to bring this decision making into the ID stage, this ID stage, and is there going to be any hazard involved in this movement from EX stage to ID stage? That's what we want to look at. Okay, so there are two complicating factors here. First is that if you look at the forwarding muxes in the data path, and I'm actually going to show you those muxes. Before I do that, let me tell you that this branch if equal instruction, it has two registers which we want to compare. Okay, and currently you can see that these registers are coming from the register file and going into the ALU, coming from the register file going to the ALU through this ALU source mux. Okay, but in a pipeline data path with data hazards taken care of, the things look a little different. And let's see, where can I find it? Can I find it here? That's not good. It should be somewhere here.
Yeah, there it is. Oh no, that's not what I want. That's not what I want. Let's delete this page. I want to show you a different figure. Yeah, this one. This is the one I wanted to show you. Okay, now let's see. Okay, now this is the data part. Actually, let's make it a little smaller. How about doing 70%? No, that's too small. How about 80? Yeah, that's good. Let's make it 80%. Okay, now look at this data path. Now, for a branch, if equal register 1, register 3, you see register 1 can come from a register file. Let me choose a different color now. It can come from a register file. See, this is coming from register file, or it can come from this pipeline register or this pipeline register. This one, the value of register 1. Likewise, the value of register 3, it can come from the register file here, or it can come from one of the pipeline registers. Now this is the complication. If we want to, अच्छा यार मैं फिर अपना काठा अंग्रेज बन गया, बिल्कुल नहीं. अच्छा, अगर हमने इस डिसीजन मेकिंग को आईडी स्टेज में लेके जाना है ना, तो हमें एडिशनल फॉरवर्डिंग लॉजिक चाहिए होगा जो कि यहाँ कहीं पे कोई मक्सद वगैरह आके लगेंगे, क्योंकि अब हमें ये जो फॉरवर्डिंग हम जो ALU के इनपुट के ऊपर जो मक्सद लगा के फॉरवर्डिंग कर रहे थे ना, अब हमें वो फॉरवर्डिंग इधर लेके जानी पड़ेगी. तो हमें यानी मज़ीद चाहिए होगा फॉरवर्डिंग लॉजिक. तो ठीक है ना, ये चीज़ समझ आ गई ना. तो एक तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गई. दूसरी कॉम्प्लिकेशन की भी बात करते हैं, ठीक है. लेकिन लेट्स अस्यूम कि हमारे जो रजिस्टर है ना ब्रांच के दोनों, जिनको कंपैरिजन करना है ब्रांच ऑफ इक्वल के, वो दोनों रजिस्टर फाइल से आने हैं. अब हमने उनको इक्वालिटी के डिसीजन लेनी है ना. अच्छा, अब यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ब्रांच ऑफ इक्वल और ब्रांच नॉट इक्वल, ये दो जो है ना, ये बड़ी फंडामेंटल लेवल की ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हैं. और बहुत सा काम जो है ना वो आप इन्हीं से कर सकते हैं. बहुत सा काम, यानी बहुत सा जो लॉजिक आप प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलप करते हैं इन दोनों की मदद से कर सकते हैं, ठीक है ना. तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह इनको तो फास्ट किया जाए ना. इनका जो ब्रांच टेकन डिले है उसको तो किसी तरह कम करें ना. अच्छा, अब ब्रांच ऑफ इक्वल की एग्जांपल ले लेते हैं. अब हमने इसमें करना क्या है, हमने सिर्फ इक्वालिटी टेस्ट करनी है. इक्वालिटी टेस्ट करना बहुत आसान है. दो 32 बिट रजिस्टर्स है ना, दोनों 32 बिट रजिस्टर्स है ना, तो दो 32 बिट रजिस्टर्स को आप बिट बाय बिट एक्सक्लूसिव और कर दें. एक 32 बिट का एक्सक्लूसिव और बिट बाय बिट कर दें अगले 32 बिट रजिस्टर से. बिट 0 को बिट 0 से करें, बिट 1 को बिट 1 से करें, एंड सो ऑन. अच्छा, उसके बाद जो आपके पास 32 बिट रिज़ल्ट आएगा ना, उसकी सारी की सारी इंडिविजुअल जो बिट्स है ना उनको और कर दें आपस में. तो पहले आपने ज़ोरिंग की, ज़ोरिंग बिट बाय बिट, और उसके बाद ऑरिंग कर दी रिज़ल्ट की सारी बिट्स की. अब अगर आपके पास जवाब ज़ीरो आ गया है ना, जवाब अगर ज़ीरो आ गया है, इस ऑरिंग का जवाब अगर ज़ीरो आ गया है ना, तो इसका मतलब है कि दोनों रजिस्टर्स जो हैं उसकी वैल्यूज़ सेम है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रजिस्टर में था 1 0 1 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और दूसरे में भी यही था 1 0 1 1 0 1 1 0. अब देखें, अब इनका एक्सक्लूसिव और क्या होगा, सब ज़ीरो होगा.
ठीक है। अब आप इन सारी बिट्स का और कर दें, 32 इनपुट और गेट लगा दें तो वो भी ज़ीरो होगा। ठीक है। अगर कोई भी एक बिट यहाँ पे 1 होगी ना, तो ये जो फाइनल ऑरिंग आपने करनी है ना, ये ज़ीरो रिजल्ट नहीं देगी आपको, ये 1 देगी। तो अब आप देखें कि ये आपको पता चल गया कि डिसीजन मेकिंग के लिए आपने करना क्या है कि आपने इन दोनों को ना एक तरह से एक इक्वालिटी का जो लॉजिक है ना उसके थ्रू गुजारना है। और अगर जवाब ज़ीरो आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब है दोनों बिट्स, दोनों रजिस्टर्स जो हैं दे आर इक्वल। तो ये काम हो गया। ठीक है ना। अब वही मसला जो मैंने पहले बताया था कि ये जो दो वैल्यूज, जो दो रजिस्टर्स से वैल्यूज़ आ रही हैं ना, हो सकता है कि ये आपको पुरानी वैल्यूज़ मिल रही हों और जो करंट, जो मोस्ट रीसेंट वैल्यूज़ है ना, वो या इधर हों या इधर हों, एक्स मैम के अंदर हों या मैम/WB के अंदर हों। तो वो आपको फॉरवर्डिंग करके यहाँ तक पहुँचानी पड़ेंगी। ठीक है ना। वो आपको फॉरवर्डिंग करके यहाँ तक लानी पड़ेंगी। तो वो तो एक अलग बहस है ना। अच्छा, अब एक और भी मसला है। वो मसला ये है कि अगर आपके पास ये जो आपने फॉरवर्डिंग करके यहाँ पे जब आप ले आए हैं, लेट सपोज कि आपकी ये ब्रांच यही थी, ब्रांच इफ इक्वल यही दे दिए थे BEQ1 3 और आगे वो जो भी था नंबर जो भी था। अगर लेट सपोज कि उससे पहले कोई और इंस्ट्रक्शन थी जो कि रजिस्टर 1 को मॉडिफाई कर रही थी, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ऐड रजिस्टर 1 कॉमा रजिस्टर 10 कॉमा रजिस्टर 11, यानी रजिस्टर 10 और 11 को ऐड करके वो 1 में रिजल्ट लिख रही थी। अब इसका मतलब यह है कि अब आपको ये रिजल्ट आपको कब अवेलेबल होगा, ये रिजल्ट आप देखें, ये आपको अवेलेबल होगा इस पाइपलाइन स्टेज में, मेम स्टेज में ये रिजल्ट अवेलेबल होगा। ठीक है। और मेम स्टेज से इसने जाना है आईडी स्टेज में। अब मेम स्टेज से अगर इसने आईडी स्टेज में जाना है ना, तो अब आपको एक स्टॉल साइकिल डालना पड़ेगा, एक बबल डालना पड़ेगा। ठीक है। एक बबल डालना पड़ेगा आपको क्योंकि आप जब आपकी ये ब्रांच इक्वल जो है ये इधर पहुंचेगी, तो आपकी जो पिछली इंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी आगे आ चुकी होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आपको किसी तरह भी आपकी जो यहाँ पे आपने डिसीजन लेनी थी ना, एक्चुअली आई टेक बैक माई वर्ड्स, यहाँ पे आपकी जब ब्रांच ऑफ इक्वल इंस्ट्रक्शन पहुँची है ना, तो यहाँ पे आपने डिसीजन लेनी है। अब देखें कि उससे पहले जो आपकी इंस्ट्रक्शन थी ना, ये ऐड इंस्ट्रक्शन, ये ऐड इंस्ट्रक्शन इससे आगे थी, ये ऐड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे थी। ठीक है। जब वो ऐड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आई तो ब्रांच ऑफ इक्वल जो है वो इधर आ चुकी हुई है यहाँ पे। जब ये आगे चली गई तो वो इधर आ चुकी हुई है। अब वो तो निकल चुकी हुई है स्टेज से, डिकोड स्टेज से, लिहाजा आपको यहाँ पे एक डालना पड़ेगा, बबल डालेंगे। उसके बाद फिर दोबारा जब ब्रांच यहाँ पे आएगी ना, तो फिर आपको वो ये वाली वैल्यू जो है ना, जो कि प्रीवियस इंस्ट्रक्शन ने मॉडिफाई की थी, ये फिर आपको फॉरवर्डिंग लॉजिक के थ्रू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है ना। तो नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब इसी तरह एक और कॉम्प्लिकेशन भी है, ये आपने बुक में भी पढ़ना है। आपको अगर क्लियर ना हुआ तो मैं दोबारा इसको क्लियर कर दूंगा। लेट सपोज कि ये जो ब्रांच ऑफ इक्वल इंस्ट्रक्शन थी ना, ये ब्रांच ऑफ इक्वल यहाँ पे लिखते हैं, ये सॉरी ब्रांच ऑफ इक्वल और ये थी, और आगे जो भी है, इससे पहले लेट से लोड वर्ड था और वो था ये।
अब लोड वर्ड के फौरन बाद ब्रांच आ रही है और लोड वर्ड रजिस्टर 1 में एक वैल्यू लोड कर रही है जिसको ब्रांच कंपैरिजन में यूज़ कर रही है। अब आपको एक नहीं, अब आपको 2 स्टॉल साइकिल्स डालने पड़ेंगे, 2 स्टॉल साइकिल्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको यानी ये ना करना पड़े, यानी अगर आप यहाँ पे ब्रांच ऑफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन आपकी जो आई है ना, तो आपने ब्रांच ऑफ इक्वल के लिए ब्रांच टारगेट कैलकुलेशन भी इधर ही कर ली, ब्रांच टारगेट कैलकुलेशन, और आपने डिसीजन भी इधर ही ले लिया इस इक्वालिटी लॉजिक के थ्रू। तो अब ये पॉसिबल है कि आप यहीं से ये जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू आपने जो कैलकुलेट की है नई, उसको आप राउट करके तो वापस इधर ले आएँ। अब आपको यहाँ पे भी एक मक्स लगाना पड़ेगा और वो मक्स जो है सिलेक्ट करेगा कि PC+4 ने अंदर जाना है या कि ब्रांच टारगेट ने जाना है। अभी एक आगे फिगर आएगी उसके अंदर हम इसको देख भी लेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज़ द रीज़न कि आप अपना यानी these are the complications involved in reducing the branch delay for a branch that is taken, ठीक है। तो अब आपने मुझे बताना है कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई है कि नहीं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की है, लेकिन स्टिल आई वांट योर फीडबैक। अब हम ना एक जो पाइपलाइन ब्रांच की एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, और वो एग्ज़ाम्पल जो है वो आपकी बुक में भी है, और उसी एग्ज़ाम्पल को मैं यहाँ पे आपको दिखाना भी चाहता हूँ। ये वो एग्ज़ाम्पल है, और जो इंस्ट्रक्शंस है ना, एक्चुअली मैं वो देखना चाहता हूँ। वो कोड मैंने कहीं पे लिखा हुआ था, वो कोड किधर है? लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दैट कोड। हाँ, ये वो कोड है। ये मैं आपको कोड दिखाता हूँ। ये वो कोड है, ये वो कोड है। इस कोड को हमने रन करना है एक जो हमारा जो नया पाइपलाइन, जिसमें हमने पाइपलाइन का जो डिले है उसको जो पाइपलाइन का डिले क्या गया, ब्रांच का जो डिले है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की थी। तो अब आगे एक फिगर भी आएगी, और उस फिगर हम आगे पीछे जाएंगे। हम इधर आके हम इन इंस्ट्रक्शंस को भी देखेंगे और फिर आगे देखेंगे कि उस पाइपलाइन के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है। ये देखें जी, ये इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं। देखो ये बड़ा मसला है, इसका बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये लेंगे, अच्छा जी। बल्कि यार इट सीम्स लाइक इसको भी 80 पे लाना पड़ेगा, और ये लें जी, ये हमारी पाइपलाइन है। अच्छा ये देखें यहाँ पे, अब मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ। ये देखें, ये ब्रांच टारगेट कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। और ये देखें, ये बीच में एक ये इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। ये वो लॉजिक है जो कि टेस्ट करता है कि डिसीजन लेनी है कि नहीं। इक्वालिटी का लॉजिक जो है ना, जो पता चलाता है कि डिसीजन ये ब्रांच को करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। ये वो लॉजिक है। ये देखें, रजिस्टर 1 और ये रजिस्टर, ये नीचे रजिस्टर 3, ठीक है। तो अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। हम ज़रा आगे पीछे बैक एंड फोर्थ जाएंगे।
देखें जो पहली इंस्ट्रक्शन है ना, ये देखें पीछे जाएं, पहली इंस्ट्रक्शन है ये सब्ट्रैक्शन की, और ये इंस्ट्रक्शन है एड्रेस 36 के ऊपर, ठीक है। पहले क्लॉक साइकिल में क्या होगा कि ये इंस्ट्रक्शन, ये जो सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन जो है ना, ये सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन ये इधर आएगी, ठीक है, पहले क्लॉक साइकिल में। दूसरे क्लॉक साइकिल में ये इधर चली जाएगी और BEQ इधर आ जाएगी। तीसरे क्लॉक साइकिल में ये इधर चली जाएगी और ब्रांच इफ इक्वल इधर आ जाएगी और ऐड इधर आ जाएगी, ठीक है जी। अब हम इसको थोड़ा सा सफाई कर देते हैं ताकि ये लें जी, इस यार सरी के लिए अजानें शुरू हो गई हैं, अजानें तो नहीं होती यार, वो एलानात शुरू हो गए हैं। ओके अच्छा जी, अब देखें क्लॉक साइकिल 3, ये क्लॉक साइकिल ये क्लॉक साइकिल 3, ये क्लॉक साइकिल 3 के अंदर क्या होगा ये अब हम देख रहे हैं। क्लॉक साइकिल 3 में सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन जो है ना वो तो आ गई यहाँ पे। ये कौन सी स्टेज है? EX स्टेज है, यू नो वेरी वेल। ये MEM स्टेज है और ये राइट बैक स्टेज है। ज़ाहिर है सब्ट्रैक्शन ने राइट बैक भी करना है। और ये डिकोड स्टेज है और ये फेच स्टेज है, ठीक है। ऑलराइट, अब देखें अब हो क्या रहा है कि क्लॉक साइकिल 3 जब शुरू होगा ना तो ब्रांच इफ इक्वल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गई है ID स्टेज में। और अब जब तक क्लॉक साइकिल 4 नहीं आता क्या क्या काम होंगे वो मैं आपके सामने ज़रा रखता हूँ। ये देखें ब्रांच इफ इक्वल जो थी ना उसका ये ब्रांच टारगेट कैलकुलेशन होगी, क्लॉक साइकिल 3 में होगी। ये क्लॉक साइकिल 3 में ब्रांच टारगेट कैलकुलेशन होगी। क्लॉक साइकिल 3 में ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्टेज में भी अपना कुछ काम कर रही होगी, लेकिन हमें सिर्फ ब्रांच पे फोकस किए हुए हैं, हमने फोकस ब्रांच पे किया हुआ है। तो ये तो ब्रांच टारगेट कैलकुलेट हो गया। अब ये देखें ये टारगेट यहाँ से निकल के ना यहाँ से होता हुआ ये देखें ये इस मक्स के अंदर चला गया, ठीक है। और ये इस मक्स के अंदर PC+4 आ रहा है जो कि यहाँ से आ रहा है। अच्छा बेसिकली ये देखें ये एंड इंस्ट्रक्शन जो है ना ये देखें एंड इंस्ट्रक्शन कहाँ पे थी। एंड इंस्ट्रक्शन जो थी 44 के ऊपर थी, एड्रेस 44 पे। तो PC+4 48 होगा ना। ये देखें ये 48 छोटा सा नमूना सा नज़र आ रहा होगा आपको, 48 लिखा हुआ है। अच्छा ये 44 जो है ना ये वो प्रीवियस PC+4 है जो कि अगली स्टेज के अंदर आ गया हुआ है, प्रीवियस PC+4, यानी इसका PC+4 ये था। ये जो थी ना ये इंस्ट्रक्शन 40, ये एड्रेस 40 के ऊपर थी। ये देखें ये देख लें ये इंस्ट्रक्शन 40 के ऊपर सॉरी यार एड्रेस 40 के ऊपर थी। अब ये PC+4 उसका आ गया, ठीक है। अब ये PC+4 इधर चला गया। यहाँ से ये देखें ये साइन एक्सटेंडर से एक जो आउटपुट है वो तो इधर जा ही रहा है पाइपलाइन रजिस्टर के अंदर, और एक दूसरा आउटपुट जो है ना वो ये देखें यहाँ से आके ना ये शिफ्ट लेफ्ट 2 के अंदर गया और यहाँ से निकल के ना एक वैल्यू इधर चली गई है और यहाँ पे एक एडर लगा हुआ है। ये देखिए उसने कैलकुलेट कर लिया ब्रांच टारगेट विच इज 72। अच्छा अब ये ब्रांच टारगेट यहाँ से होके ना इधर आके रुक जाएगा। मैं थोड़ा सा इरेज करके ना ज़रा थोड़ा इसको नीट कर दूँ। ये देखें ये जो ब्रांच टारगेट कैलकुलेट हुआ है ना ये जो ब्रांच टारगेट कैलकुलेट सॉरी ये जो ब्रांच टारगेट कैलकुलेट हुआ है ना इसने अब यहाँ से हो के ना ये देखें यहाँ से हो के इधर आ जाना है। तो इस जगह पे क्या आ रहा होगा, इस जगह पे आएगा 72 आएगा। इस जगह पे क्या आएगा 48 आएगा। ये मक्स जो है ये इसने अब डिसाइड करना है कि आगे क्या जाना है। तो आगे ये भेज देगा 72, लेकिन ये 72 जो है ना ये प्रोग्राम काउंटर में लिखा नहीं जाएगा। सॉरी ये प्रोग्राम काउंटर में लिखा नहीं जाएगा जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग एज नहीं आता क्लॉक का। नेक्स्ट ट्रिगरिंग एज यानी क्लॉक साइकिल 4 जब तक शुरू नहीं होता ना ये लिखा नहीं जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमने ना एक और काम करना है।
वो काम हमने ये करना है कि जब हमने इंस्ट्रक्शन को फ्लश करना होता है ना, IF स्टेज की इंस्ट्रक्शन को फ्लश करना बहुत आसान है। IFID रजिस्टर जो है ना, IFID रजिस्टर, इसके अंदर ये देखें, ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन जा रही है यहाँ पे, पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर जो बिट 26 से बिट 31 जहाँ पे ऑप कोड पड़ा होता है ना, उस ऑप कोड को आपने ज़ीरो कर देना होता है। उस ऑप कोड को ज़ीरो करने के लिए ये हमने एक सिग्नल रखा हुआ है, सिंगल बिट का सिग्नल है IF.flush। IF.flush क्या करता है कि IF.flush जो IFID रजिस्टर के अंदर जो ऑप कोड पड़ा होता है ना, जो कि इस केस में एंड का ऑप कोड होगा, उसकी जगह ज़ीरो लिख देगा। और ज़ीरो ऑप कोड जो है ये नो ऑप का होता है, नो ऑपरेशन। तो ये सिग्नल ये हमें चाहिए, ये हमने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि ID स्टेज के अंदर क्या कार्रवाई हो रही थी। ID स्टेज के अंदर ये 72 कैलकुलेट हुआ था, ये अपनी जगह चला गया। ये इक्वालिटी टेस्ट लॉजिक ने डिसीजन लिया और देखा कि जी ब्रांच टेकन है, ब्रांच टेकन है ना। तो अब ब्रांच टेकन होने की वजह से उसने इसको 1 कर दिया, IF.flush को 1 कर दिया। उसकी वजह से क्या होगा कि ये इसी क्लॉक साइकिल 3 में इस रजिस्टर के अंदर जो ऑप कोड होगा ना, वो बिट्स ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, वो बिट्स ज़ीरो हो जाएंगी। अच्छा, और क्या होगा कि ये रजिस्टर 1 की वैल्यू आगे भी चली जाएगी, रजिस्टर 3 की वैल्यू आगे भी चली जाएगी, और इस इक्वालिटी लॉजिक से टेस्टिंग भी हो गई, इक्वालिटी ट्रू आई। तो उसके बाद यहाँ पे ज़ीरो, ये IFID में इस रजिस्टर में ज़ीरो डाल गया। अब हुआ क्या कि एकदम से चौथा क्लॉक साइकिल आ गया। जैसे ही चौथा क्लॉक साइकिल आया ना, तो ये देखिए, ये चौथा क्लॉक साइकिल है, ये देखिए चौथा क्लॉक साइकिल। अब ब्रांच इफ इक्वल जो है ये EX स्टेज में चली गई। और देखें, आपको याद है ना, मैंने कहा था कि IF.flush सिग्नल ने IFID पाइपलाइन रजिस्टर के अंदर जो ऑप कोड की बिट्स थी उनको ज़ीरो कर दिया था। उन ऑप कोड की बिट्स ज़ीरो होने की वजह से अब यहाँ पे एक बबल आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, ये बबल इधर इंट्रोड्यूस कर दिया आपने। ठीक है, अच्छा, ये बबल जो है ना, अब ये आहिस्ता आहिस्ता हर क्लॉक साइकिल, आहिस्ता आहिस्ता नहीं कहना चाहिए, हर क्लॉक साइकिल में ये बबल आगे चलता चला जाएगा। अगले क्लॉक साइकिल में इधर आएगा, अगले में इधर आएगा, अगले में इधर आके ख़त्म हो जाएगा काम। ठीक है, अब होगा क्या कि अब ये देखें कि यहाँ से जो आपने 76 रखा हुआ था ना, सॉरी 72 यहाँ पे था ना, वो 72 आगे चला गया। उस 72 ने ये लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन लोड करनी शुरू कर दी। उसने क्या किया, लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन को लोड करना शुरू कर दिया। और लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन जो है, उसने अब इस बबल के बाद, ये जो बबल यहाँ पे हमने डाला था ना, इस बबल के बाद पीछे लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन आ रही है। और एक बबल या एक क्लॉक साइकिल ज़ाया करने के बाद हम ब्रांच टारगेट के ऊपर से एग्जीक्यूशन शुरू कर देंगे। हम क्या करेंगे, ब्रांच टारगेट के ऊपर से एग्जीक्यूशन शुरू कर देंगे। तो अब इसमें अब आपको ये याद रखना चाहिए, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे भी एक मक्स लगेगा, यहाँ पे भी मक्स लगेगा, और उसके बाद फिर डिसीजन होगा। ये फॉरवर्डिंग लॉजिक जो है, इस फॉरवर्डिंग लॉजिक ने अब इधर भी अपना फॉरवर्ड करनी है वैल्यूज़ और वो सारा कुछ। तो वो सारी कॉम्प्लिकेशन जो है ना, वो एक एक्सरसाइज के अंदर उसने आपको कहा हुआ डील करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि वो एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दी जाए कि ना दी जाए, क्योंकि हम भी आपकी मदद करना चाहेंगे उसको सॉल्व करने में। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें, फिर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ना प्रोसेसर डिज़ाइन की, वो आपको समझ आएंगी कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए कितनी यानी एफर्ट करनी पड़ती है।
तो अब ये आपने देख लिया कि ये हमने इस पूरी जो आज की हमारी जो डिस्कशन थी ना, इसमें हमने सिर्फ एक काम किया कि हमने जो ब्रांच की जो ब्रांच टेकन होगी ना, उसको हमने सिर्फ एक बबल के साथ हैंडल कर लिया है। यानी एक बबल हमने डाला है। अगर हम ये सारा कुछ ना करते तो हमें 2 या 3 बबल डालने पड़ते। वो बबल हमें एडिशनल बबल डालने पड़ सकते हैं अगर हमारी ब्रांच इफ इक्वल के जो रजिस्टर्स हैं टेस्ट करने वाले, वो इधर से आ रहे हैं या इधर से अगर आ रहे हों। अगर इन दोनों रजिस्टर्स में से आ रहे होंगे तो फिर हमें डालना पड़ेगा अपना फर्दर डिले, स्टॉल करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हम अस्यूम कर रहे हैं कि हमें सब कुछ इधर ही से मिल गया है, यहाँ से रजिस्टर फाइल से ही हमें सब कुछ मिल गया, तो इसलिए हमें सिर्फ एक डिले हमने डाला है, एक साइकिल का, सिंगल क्लॉक साइकिल का डिले डाला है और हमने ब्रांच को हैंडल कर लिया है। ठीक है, तो अब इस वजह से अब दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग टू स्टॉप। और अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें डिस्कशन हम रैप अप कर देंगे, उसमें हम डायनामिक ब्रांच प्रेडिक्शन की ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे और उसके बाद हमारी ये सारी डिस्कशन मुकम्मल हो जाएगी। कंट्रोल हैज़र्ड्स की, डेटा हैज़र्ड्स की डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी, लेकिन आपने फिर भी किताब पढ़नी है, सेक्शन 4.8 आपने पढ़ना है और सेक्शन 4.8 जो है उसके अंदर ये अपना डिस्कशन बड़े अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन की हुई है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो डायनामिक ब्रांच प्रेडिक्शन के ऊपर होगा, एंड दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग टू स्टॉप एंड वी विल कम बैक विद dynamic branch prediction in lecture 6C, and let's stop here and there we go.